going to cover our next topic, okay, which is about values. What values are? What is the significance of values? What are the importance of values in our subject, human values and professional ethics? In our last video, we had covered the introduction part, the significance, the importance of human values in a human life. Okay. So, in our last video, let's take a recap of our last video. We had the introduction part, the importance of human values and professional ethics. Okay. First, we have studied the personal development for the development of our personality. Okay. तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए जरूरी है. उससे क्या होता है, हमारे मोरल फाउंडेशन ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोफेशनल सक्सेस, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, रेपुटेशन इंक्रीज करता है. ओके. वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सोशल इम्प्लीमेंटेशन में सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जस्टिस एंड फेयरनेस, लीगल कंप्लायंस, रेगुलेशंस एंड अकाउंटेबिलिटीज. ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कल्चरल सेंसिटिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. हम सारे के सारे जो है पॉइंट्स है कि हम ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स जब पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट? ओके. Adaptability to change. Okay. Now come to the point, what are values? Values are the basic and fundamental beliefs that guide or motivate attitude or actions. वैल्यूज क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल. हम जो भी एक्ट करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जिस तरह से एक्ट करते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, दैट्स ऑल आर बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज. what value we are having. Okay. Now values क्या हो सकते हैं? qualities, characteristics, ideas which are feel strongly crucial to affect our decisions. Okay. Value define what is of worth and what is beneficial, what is harmful. वैल्यू के कभी डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है. हम जो एक्ट कर रहे हैं, हम जो एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ओके. क्या वो नेगेटिविटी की तरफ हमें लेके जाएगा या पॉजिटिविटी हमें हमारे अंदर इंक्रीज करेगा? जो एक्ट हम कर रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ में. उसके बाद वैल्यूज आर स्टैंडर्ड टू गाइड your action, judgment and attitude. Okay, these are some example of core values: reliability, dependability, commitment, open-mindedness, loyalty, consistency, honesty, efficiency. Okay, these are the definition which we had already covered. The existence of values we had already covered. Okay, let's take a brief recap. Values are different for each person. Okay, person to person vary करती है. In your daily life, you are meeting a number of people. Okay, तो हर पर्सन की जो वैल्यूज है वो क्या होगी? अलग अलग होगी. पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है. ऐसा नहीं कि एक वैल्यू जो है, सपोज कीजिए हम बात करते हैं ट्रस्ट की. ओके, तो ट्रस्ट इज अ वैल्यू. ठीक है, तो वो क्या सब इम्प्लीमेंट नहीं हो. उसके बाद दिस कैन बी डिफाइंड एज आइडियाज गिव दैट पर्सन more desirable and undesirable. Value may be specific. Okay, value can provide standard to competence and morality. Value can go towards specific situation or person. Okay. Characteristics of value we had already covered. Significance and importance of values we had already covered. Okay. Value lays down the foundations for understanding of attitude and motivations. Value influence the perception of an individual. Okay, perceptions means जो हम सोचते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो वो क्या होता है? परसेप्शन होती है. और वो परसेप्शन हमारे किसी बेसिस पे बनती है, हमारे वैल्यूज की बेसिस पे बनती है. उसके बाद पर्सनल वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस द वे इंडिविजुअल व्यू द अदर इंडिविजुअल्स. वैल्यू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड आवर एक्शंस एंड जजमेंट. वैल्यू हेल्प्स द इंडिविजुअल टू एनालाइज राइट और रॉन्ग, ethical and unethical. Now, this is our new topic, types of values. Okay. Yes. Types of value, if you are talking about broader way. Okay. Broader way में we are categorized the values in two parts. First one is intrinsic value and second one is extrinsic values. Intrinsic values क्या होती है? Those values which are inherently rewarding. Okay, इसमें क्या होता है? जो वैल्यूज हमारे अंदर से आती है. किसी को किसी सेकंड पर्सन की दो तरह की वैल्यू है. फर्स्ट वन इज जो हमारे अंदर से आती है. सेकंड वन कोई सेकंड पर्सन हमारे अंदर क्या करते हैं? क्रिएट कर सकते हैं.
जैसे किसी पर्सन की क्रिएटिविटी है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई ड्राइंग अच्छी कर रहा है, ठीक है, किसी की जो माइंड थिंकिंग है वो क्या है, क्रिएटिविटी कर रही है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो वो क्या है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज। ओके, सोशल जस्टिस, कनेक्शन विद नेचर, अब सारे के सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कनेक्टेड नहीं होते नेचर से, ठीक है, सबको नहीं अच्छा लगता है कि हम पहाड़ों में जाए, कि हमें वाटर जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्या करना चाहिए, उनको स्टोर करके रखना चाहिए, पानी को स्टोर करके रखना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है, जो कनेक्शन विद नेचर है, ठीक है, आपका अंदर से आता है, ठीक है, कोई आपके अंदर वो चीज डाल नहीं सकता, तो ये कौन सी वैल्यू होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज। सेकंड वन इज इंट्रिंसिक वैल्यूज में क्या है, सेंटर्ड और एक्सटर्नल अप्रूवल एंड रिवॉर्ड। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो वैल्यूज होते हैं ये एक्सटर्नल अप्रूवल पे किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे सोर्सेस पे डिपेंड होती है, वो क्या हो सकते हैं, वेल्थ हो सकता है, ठीक है, वेल्थ मींस एक इंडिविजुअल ऐसा है कि जो सेटिस्फाई है, थोड़ा सी पैसे में सेटिस्फाई है, उसको ये बोलते हैं कि ये जो मेरी बेसिक नेसेसिटी है, एक इंडिविजुअल की जो बेसिक नेसेसिटी होती है क्या होती है, बॉडी, कपड़ा, मकान, ठीक है, एक को ये लगता है कि हाँ मुझे अपने लाइफ में इतना ही करना है कि मेरी जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, और एक सेकंड पर्सन है वो क्या कहता है, नहीं मुझे अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा क्या करना है, अचीव करना है, मुझे एक लग्जरियस लाइफ क्या करनी है, जीनी है, तो क्या होता है वेल्थ, तो उसकी वैल्यूज किस पे डिपेंड है, आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपकी वैल्यूज डिपेंड है, दैट उसको हम वेल्थ बोल सकते हैं। सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस हो गया है कि मुझे लोगों से रिस्पेक्ट मिले, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ उसका रिकॉग्नाइजेशन मुझे मिले, ठीक है, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, तो वो कौन सी आपकी वैल्यूज आएगी, आपकी दैट इज एक्सटर्नल वैल्यूज। आपके जो वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड करती है, दूसरे फैक्टर्स पे आपको डिपेंड करती है, अंदर से नहीं आ रही है, ठीक है, दूसरा आपको क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, दूसरा आपको नोटिस करे, आपको रिकॉग्नाइज करे, आपका एक सोसाइटी में स्टेटस जो है वो मेंटेन, दैट कम्स अंडर सोशल स्टेटस। सेल्फ इमेज, पर्सनल सिक्योरिटी, दीज आर द एक्सटर्नल वैल्यूज, ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यूज। वैल्यूज को हमने और भी पांच में कैटेगराइज किया है, सब वैल्यूज में कैटेगराइज किया है, जिस फर्स्ट वन इज ट्रूथ, राइट कंडक्ट, लव, पीस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ में आता है ट्रूथफुलनेस हो सकता है, आप कितने ट्रूथफुलनेस हो आप, ठीक है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है कि उसको कभी ना कभी झूठ बोलना पड़ता है, बट उस सिचुएशन में आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं वो आप पे डिपेंड, तो वो भी क्या है आपकी वैल्यू है। कई लोग होते हैं ना कि नहीं तो झूठ बोलना ही नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं क्या करूँगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तो उसको एट ए टाइम कोई अगर मुझसे पूछ रहा है तो उसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूंगा, ताकि मुझे उसके बेसिस पे और झूठ ना बोलना पड़े, तो वो क्या है ट्रूथफुलनेस है, ठीक है, क्रिएटिविटी है, ये कहाँ से आती है, आपकी इंटरनल से आती है, ठीक है, ऑनेस्टी है, डिटरमिनेशन है, फेयरनेस है, ट्रस्ट है, रिफ्लेक्शन है, उसके बाद राइट कंडक्ट में क्या आ जाएगा, मैनर्स, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, अपनी फैमिली से, आप अपने सबऑर्डिनेट से, आप अपने एम्प्लॉय से, आप अपने कोलीग से, ठीक है, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, दैट कम्स अंडर मैनर्स। उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस, हाउ पर्टिकुलर you are aware about your health, okay, helpfulness, आप का जो हेल्पफुलनेस में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या आप किसी पर्सन की हेल्प करते हैं या तो मॉनिटरी या कोई और तरीके से, ठीक है, क्या आप किसी को जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पेरेंट्स आके घर में, क्या हम उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उनको कुछ अलग से एड्स प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कहेगा आपका हेल्पफुलनेस में, ठीक है, सब लोग हेल्पफुलनेस नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो हेल्प कर सकते हैं, दे आर मॉनिटरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अगर उसके मॉनिटरी बात करें दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बोल सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल दे आर स्ट्रॉन्ग, बट they are not helping their servants, okay, they are not helping their subordinates, okay, and कुछ ऐसा होता है कि they are not financially strong, उसके बाद वो क्या करते हैं, जितना उससे कर सकते हैं वो हेल्प करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, मैंने कोई एक्ट किया है, कई बार ये होता है कि हम कुछ गलत कर देते हैं, उसके बाद हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सेकंड पर्सन पे डाल देते हैं, किसी थर्ड पर्सन पे डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हम उस सिचुएशन से क्या हो जाए, बच जाए, तो दैट्स कम्स अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बात करें वैल्यूज की, ठीक है,
कोई भी इंडिविजुअल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, अपने एक्ट के लिए। उसके बाद इंडिपेंडेंस, प्रिजनेस, करेज, लव में आ जाएगा आपका काइंडनेस, हाउ काइंड यू आर, फ्रेंडशिप, आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है, फ्रेंड सर्कल में लोग कितने हैं, कितने टाइम से अगर बात करते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हम हर जगह जा रहे हैं तो नया फ्रेंड सर्कल आपका हर जगह बनता है, बट आपको जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, लास्ट कॉलेज में जगह आप एज अ स्टूडेंट है तो कितने वो फ्रेंड्स हैं जो आज भी आपसे क्या है, कनेक्टेड है, फ्रेंडशिपनेस, फॉरगिवनेस, आप कैसे चीजों को, देखिए गलती हर इंसान से होती है, आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा पर्सन आया होगा जिसने कोई गलती की होगी, उस सिचुएशन में आपने किस तरह से रिएक्ट किया, आपने उसको माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, या आपने क्या किया, रिवेंज लिया, दैट पर्सन, फॉरगिवनेस, जेनरसिटी, कंपैशन, टॉलरेंस, आप चीजों को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, आप शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, आप जल्दी से गुस्सा तो नहीं आते, दैट्स ऑल कम्स इन वैल्यूज। सर्विस, पीस में आएगा आपका पेशेंस, कंसंट्रेशन, पॉजिटिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या है कि आप अपने आप को किस तरह से सेट करते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग नेगेटिव होते हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं मुझे बड़ी सारी कमियां हैं, और कई होते हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ मुझ पे बड़ी सारी कमियां हैं, बट वी आर फार फार बेटर देन द अदर्स। ओके, तो ये आएगा आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस में। कुछ लोग होते हैं जिसमें मोटे होते हैं, ठीक है, बल्कि होते हैं, तो क्या कहते हैं आपको एक्सेप्ट नहीं करते, बॉडी शेमिंग होती है, ठीक है, तो आप अपने आप को किस तरह से एक्सेप्ट करो। कुछ ऐसे होते हैं कि क्या होते हैं, बल्कि होते हैं बट दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, और भी होता है कि हाँ बल्कि है तो क्या हुआ। आफ्टर दैट थैंकफुलनेस, कोई किसी ने कुछ काम किया है आपके लिए, आप क्या उसके लिए थैंकफुल है या नहीं है, ठीक है, कंटेनमेंट, उसके बाद नॉन वायलेंस, कंसिडरेशन, कोऑपरेशन, लॉयल्टी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, एक्टिव सिटीजनशिप, these are the values, or we can say the sub values. Now basically now come to the point, types of values. जो हमने लास्ट पार्ट में किया है, जो हमने जो टेबल किया है कि भी टाइप्स ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, एंड यस, ठीक है, अगर हम बॉर्डर में कैटेगराइज करें तो ये हमारे टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज है, इंट्रिंसिक वैल्यूज एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। उसके बाद लेट्स थोड़ा सा आउटपुट में उसको हम करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वैल्यू। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू में इंटरेस्ट इन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, reasoning, systematic thinking, the ideal theoretical values that discovery of the truth. Theoretical values क्या होते हैं? Theoretical values में क्या आता है, कई बार क्या होता है, हम facts and figures पे believe करते हैं, facts and figures पे, उसकी बेसिस पे हमारी जो वैल्यू है वो डेवलप हो जाती है, that comes under theoretical values। कोई इंग्लिश में होता है कि मैं तो उसी फैक्ट को कंसीडर करूंगा आंखों देखी, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है तभी मैं उस फैक्ट को क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा, अदरवाइज नहीं। या फिर कोई ऐसा फैक्ट है, ठीक है, जिसका कोई सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको कर रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, फॉलो करूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू, इंटरेस्ट इन यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकली इंक्लूडिंग accumulation of wealth. The ideal economic value what is useful and concerned with practical affair. Okay, economical values में क्या आएगा, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू भी क्या है, इंटरेस्ट इन ब्यूटी, आर्टिस्टिक हार्मोनी, ठीक है, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। आप एस्थेटिक वैल्यू में हम क्या करते हैं, जो नेचर लेवल होते हैं उसको भी हम एस्थेटिक वैल्यूज में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। The ideal aesthetic values artistic and aesthetic experience in life, though he himself may not be great. Okay, these values reveals appreciation for the way things look, sound, feel, taste, smell. Example, beauty in painting, nature and music. Aesthetic value में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि मैं क्रिएटिव हूँ, ठीक है, मैं कोई क्रिएटिव हूँ, मैं अच्छा सा म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, मैं अच्छे से गाने गाता हूँ, दैट्स नॉट कम्स इन एस्थेटिक वैल्यू। इसमें क्या होता है, अगर किसी सेकंड पर्सन ने भी कोई क्रिएटिविटी की है, कोई पेंटिंग ड्रॉ करी है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रेस कर रहा हूँ उस चीज को, दैट कम्स इन एस्थेटिक वैल्यूज। आफ्टर
relationship. The ideal social man plays great values of love and affection. He tends to be kind and sympathetic to other individuals, for example, relationship among family, neighbors, colleagues, etc. ठीक है? सोशल वैल्यूज में क्या होगा, जो भी सोसाइटी में लोग हैं, सोसाइटी में आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिलीज हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप किस तरह से क्या करें, ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं. देखिए बिजी शेड्यूल हर किसी का है, हर कोई वर्किंग है, चाहे वो उसका खुद का बिजनेस हो या कहीं पे वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, ठीक है. एवरीवन इज बिजी इन टुडेस era. ओके, सो बट जो सोशल सोसाइटी है, सोसाइटी में जो हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे, ठीक है, वो भी क्या है, इम्पोर्टेंस, वो भी इम्पोर्टेंट है. ओके, तो क्या हम सारे दिन अपने कॉर्पोरेट लाइफ में अपने बिजी रहते हैं, या हम अपनी सोसाइटी के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए भी हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं, ठीक है. तो दैट इज अगेन सम टाइप ऑफ वैल्यूज. ओके, political value, interest in gaining power and influencing other people. The ideal political man places great value on power. Example, leadership and commitment. Political values में क्या आएगा, जो भी इंडिविजुअल होता है वो क्या है, पावर चाहता है, अथॉरिटी चाहता है, ठीक है. वो चाहता है कि मैं 10 लोगों को लीड करूं, और उसमें क्वालिटी भी होती है. ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ कि मैं 10 लोगों को लीड करूं और उसमें क्वालिटी नहीं है उस चीज की. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल वैल्यूज की, तो क्या कहते हो, पावर चाहिए और क्वालिटी भी है इस चीज की, उस पावर को हैंडल करने की और लोगों को लीड करने की. रिलीजियस वैल्यू, इंटरेस्ट इन यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट बिलीव्स सपोर्ट बाय डिफरेंट रिलीजन्स. जो भी वैल्यूज रिलीजन से हो जाती है, ठीक है. रिलीजन्स में हमारे बात करें, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, ठीक है, सिख है, तो उनसे हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, उनमें बताया गया है क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, ठीक है. तो दैट द वैल्यूज व्हिच वी लर्न फ्रॉम आवर रिलीजन, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस वैल्यूज. ओके, नाउ कम टू पॉइंट सोर्स ऑफ वैल्यूज. ओके, दीस आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूज. सोर्स ऑफ वैल्यूज, सोर्स कहां से हम लर्न करते हैं वैल्यूज जो है, ठीक है, मींस क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है, कहां से हम उस चीज को लर्न करते हैं. दैट कम्स फ्रॉम सोर्स ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज आर लर्न राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, स्टार्टिंग से, बचपन से ही क्या होते हैं, वैल्यूज लर्न होते हैं. ऐसा नहीं है कि वैल्यूज के लिए कोई बुक है, कोई पर्टिकुलर बुक है, आपने क्या किया, वो बुक पढ़ ली और उसके बाद आप क्या करो, आपके अंदर वैल्यूज आ गई, ठीक है. सिंस आवर चाइल्डहुड, व्हेन वी वर अ चाइल्ड, तब से हमारे अंदर क्या वैल्यूज धीरे 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 करके डेवलप होती है. They taught by mother. Mother is the first teacher of a person or a child. Okay, when she guides the child in several ways, like you go to the bed early, you should wear clean clothes, you should achieve first rank, and think like that. Okay, तो क्या होगा, अगर being a mother, जो उसकी फर्स्ट टीचर है, वो उसको बता रही है बच्चों को कि early to bed, early to rise is a good habit. तो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे में वो जो चीज है वो क्या होगी, डेवलप हो जाएगी. उसके बाद उसको ये बताते हैं कि आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, यू हैव टू मेक अवर सराउंडिंग क्लीन. तो क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे करके उस तरह से सीखने लगेगा, उस तरह से रहने लगेगा. उसके बाद यू शुड अचीव फर्स्ट रैंक, आपको फर्स्ट आना है, फर्स्ट रैंक आपको अचीव करना है. तो बच्चों को ये लगेगा हाँ धीरे धीरे कि ये कोई अचीवमेंट है, तो वो धीरे धीरे चाइल्डहुड से क्या हो रही है, डेवलप हो रही है. What is right and wrong are probably formulated by the parents. क्या चीज गलत है, क्या सही है, ठीक है. मतलब बात करें तो 80% गलत सही फैमिली से, पेरेंट्स से डेवलप हो जाता है. बाकी 20% ये है कि जब हम बड़े होते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो हमारा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है. We drive the values from the people we love or respect, like our parents, teacher, friends, and other famous celebrities in movies, sports, business, and politics. Okay, values में हम क्या करेंगे, सिर्फ फैमिली नहीं है, जो और भी हमारे आसपास लोग हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको हम पसंद करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मैन हो गया, ठीक है. उसके बाद आउट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन
ourselves, हम क्या करते हैं, अपने आप को उनसे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो वैल्यूज जो हमें अच्छी लगती है, उनको क्या करते हैं, अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद now the points, sources of value. First is family factor. The most important factors which influence the value system of an individual is indeed family. Obviously, family is the first one which develop the values in an individual, or in a person. Okay, some values are inculcated in a person from the childhood and remain in his mind throughout his life. जो भी चाइल्डहुड, जब आप बचपन में जो वैल्यूज सीखते हैं वो फॉरएवर, ठीक है, आपके पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, जो आप चाइल्डहुड में वैल्यूज सीखते हैं अपनी फैमिली से। Parents play an important role in shaping the personality of the human being, and family is most influential factors in the individual's learning of social behavior, values and norms. इसमें सेकंड फैक्टर है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर को कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, जो हमारी फैमिली से, फैमिली तो हमारे क्या, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे कौन से फैक्टर्स में आ जाएंगे, जो हमने पेरेंट्स की बात की थी हमारे फैमिली फैक्टर्स में आ जाएंगे। एंड सेकंड वन इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स में आ जाएंगे हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल्स है, जो हमारा सबऑर्डिनेट्स है, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, दैट कम्स अंडर सोशल फैक्टर। Out of the social factors, school plays the most important role in developing the value system of an individual. देखिए अभी तक क्या था, चाइल्डहुड में क्या होते हैं, आप जो पेरेंट्स हैं वो आपके अंदर डेवलप करते हैं वैल्यूज, व्हाट आर द व्हाट आर राइट। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 to 4 years के एज में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, लोगों से मिलते हैं, टीचर्स, ठीक है, तो वो जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, ये जो फ्रेंड्स हमें सिखाते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, वैल्यूज बन जाती है। हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज गलत है, तो सपोज कीजिए 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड में से 8 बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज ठीक है, और 2 बोल रहे हैं ये चीज क्या है, गलत है। तो जो 8 है ना, हम उस चीज को क्या करेंगे, उसको सही मानना शुरू कर देंगे, और वहां से हमारी क्या हो जाए, वैल्यू जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। The child learn the basic discipline from the school. Basic जो discipline है, कहाँ से सीखते हैं कोई बच्चा, from the school. Moreover, the interaction with the teachers, classmates, and other staff member in the school and colleges make the child inculcate values importance to the teaching learning process. ठीक है, आप किससे बिहेव कर रहे हैं, अपने स्कूलमेट से, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से, जो भी स्टाफ है, सपोर्टिव जो स्टाफ है आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो भी आपकी क्या करते हैं, helps in the formation of your values. As well, other social factors which may affect values are religious, economic, political, institutional in the society. After personal factor में क्या आ जाएगा, personal traits such as intelligence, ability, mindset, appearance, and educational level of the person determine his development of the values. Personal factors में आएगा आप कितने एजुकेटेड, ठीक है, आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी क्रिटिकल एबिलिटी कितनी है, आप कितने क्रिएटिव हो, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, आपके पर्सनल फैक्टर्स में। ओके, उसमें ऑब्वियसली अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, एजुकेटेड है, आप स्कूल में गए हैं, तो स्कूल में ऑब्वियसली टीचर ने कैसे एटिकेट सिखाया है, बच्चों के साथ जब आप रहते हैं तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी की सारी चीजें आती है। एज कम्पेरेटिव टू चाइल्ड जो इलिटरेट है, जो कभी स्कूल में नहीं गया, उसके एटिकेट्स में, उसकी वैल्यूज में, और एक स्टूडेंट जो स्कूल गया है, अच्छे स्कूल में गया है, प्राइवेट स्कूल में गया है, उसकी वैल्यूज में क्या होगा, डिफरेंशिएट जरूर होगा। ओके, for example, if a person is highly intelligent, he will understand the values faster. Okay, जो आपकी इंटेलिजेंस है, that's also play an important role in creating the values. Okay, अगर कोई इंडिविजुअल क्या इंटेलिजेंट है, उसकी लर्निंग पावर, जो लर्निंग एबिलिटी वो क्या है, ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू अदर, लर्निंग पावर क्या है, ज्यादा है, तो उसकी वैल्यूज क्या होगी, वो चीजों को जल्दी सीख पाएगा एज कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स। ओके, if he is highly educated, high values will be inculcated in him by his school and college.
Now, source of values, another is cultural factor. Cultural factors include everything that is learned and passed on from generation to generation. ठीक है, cultural factor में क्या है? कुछ ऐसी values होती है जो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी, एक generation से दूसरी generation में क्या होता है, transfer की जाती है. That comes under cultural values. Okay, culture includes certain beliefs and other pattern of behaviors. कुछ certain beliefs, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? हमारे कल्चर से आते हैं. कल्चर से इन द सेंस कि जैसे हमारे कल्चर में बोलते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको ट्यूसडे को और सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाना. ये कहाँ से आ रहा है? हमारे कल्चर से आ रहा है. हमारे पेरेंट्स हमें सिखा रहे हैं, ठीक है, एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को दिखाया, तो ये कहाँ से आएगा? आपके कल्चर से आएगा. उसी तरह से आप कल्चर में कुछ और भी लगा सकते हैं. सपोज कीजिए आपको कोई पर्टिकुलर डांस है, ठीक है, या आप किसी चीज में आपके जनरेशन होते हैं, क्या है कि एक बिजनेस का आपने सेट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, वो पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है. तो इसी तरह से क्या होता है, जो वैल्यूज है वो भी क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं. Whether a person is cooperative, friendly or hostile depend upon the culture is belonging to. ठीक है, एक पर्सन क्या है, कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कल्चर पे डिपेंड करता है. जैसे एग्जांपल ले लें हम, इंडिया कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन कल्चर. ठीक है, फॉरेन कल्चर में हमारे इंडिया में क्या होता है, जो पेरेंट्स है, ठीक है, आफ्टर 18 we they are allowed to stay with their parents. Okay, but in foreign, अगर foreign से उसकी कंपैरिजन करें तो foreign में आफ्टर 12 और 14 इयर्स के बाद जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते. ठीक है, उनको ये लगता है कि हाँ अब बच्चे क्या है, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, वो अपना खुद क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपना क्या कहते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं. बट हमारे यहाँ क्या होता है, 18 के बाद भी वहाँ पे गलत समझा जाता है, नेगेटिव इस चीज को समझा जाता है कि अच्छा बच्चा जो है वो 14 इयर्स का होगा, 16 इयर्स का होगा, फिर भी वो स्टे कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ. बट हमारे यहाँ पर 18 इयर्स के बाद भी जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली रहते हैं. उसके बाद जब वो ओल्ड हो जाते हैं पेरेंट्स, तो बच्चों का ध्यान रखते हैं. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर. Now, next is religious factor. Individual generally receive strength and comfort from their religion. Okay, religion comprises of a formal set of values which are passed on from generation to generation. Advancement in technology and undervalued faith in traditional religious beliefs and values. Okay, regional factor, obviously regional factor क्या है, एक बहुत important पार्ट जो है वो प्ले करते हैं हमारे वैल्यूज की क्रिएशन. ओके, एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे हिंदुइज्म है, ठीक है, क्रिश्चियन है, सिख है और मुस्लिम्स है. तो हर किसी का क्या है, रिलीजन अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, फेथ अलग अलग है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में. ठीक है, तो क्या होगा, जिस कल्चर में, जिस रिलीजन में हम क्या करें, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, उसके जो रिलीजन के सारे फैक्ट्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो क्या होंगे हमारे अंदर ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स के थ्रू क्या किए जाएंगे, फीड अप किए जाएंगे. उसके बाद जिससे हमारी वैल्यूज क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी, उसी की बेसिस, उसी रिलीजन की बेसिस पर हमारी जो वैल्यूज है वो डेवलप हो जाएंगी. लाइफ एक्सपीरियंस में a man learn the most from his own personal life experience. Sometimes men can learn from the experience of others also. Okay, life experience में डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पर्सनल हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी वैल्यूज कुछ और डेवलप हुई है, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज, जो बिलीव्स है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देता है. और जो चीज हमें ठीक लग रही थी वो हमें क्या करती है, गलत लगने लग जाती है. That comes under life experience. Okay, in long run, most of values which influence our behavior are validated by the satisfaction we have experienced. Life experience का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं. सपोज कीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसको लगता है कि अब वैल्यूज कहाँ से है, जहाँ से वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में वो क्या हो रहा है, ब्रॉड अप हो रहा है. ठीक है, ब्रॉड एंड ब्रॉट अप जिस सोसाइटी में हो रहा है. ठीक है, एक सोसाइटी ऐसे है जिस स्लम एरिया हम लगा सकते हो, वो उसके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो उसका आसपास का जो एरिया वो क्या है, चोरी करते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, अब उसको भी लगा कि हाँ डेली जो अर्न कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, चोरी से कर रहे हैं. तो चोरी क्या है, चोरी करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, ठीक बात है चोरी करना, तो वो चोरी कर रहा है. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको एनालाइज होता है, किसी ऐसे घर में चोरी कर लेता है जो ऑलरेडी नीड थे.
उस सिचुएशन में उसको रियलाइज होता है नहीं, जो मैं काम कर रहा था वो गलत है, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे टू अर्न द मनी, दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव अवर लाइफ, ये क्या है, गलत तरीके। तो क्या है, पहले तो जब वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ था वो गलत रास्ते पे चल रहा था, उसको लग रहा था वो ठीक है, बट जैसे जैसे उसने चीजें एक्सपीरियंस की लाइफ में, ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन उसके सामने आ गई, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस उसके सामने आ गए, उसको लगा कि नहीं, जो आज तक मैं कर रहा था वो क्या था, गलत था, दैट कम्स इन द लाइफ एक्सपीरियंस। उसके बाद रोल डिमांड, the role demand refer to the behavior associated with a particular position in an organization or in the social environment, okay, role demand, देखिए role demand में अगर हम बात करें तो हमारा जो रोल होता है in a family, that's different, and when we are talking about the professional life, workplace, ठीक है, तो उसमें हमारा जो रोल है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, घर में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, बट हमें प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और किसी और तरीके से करना पड़ता है, बिहेव करना पड़ता है। तो हमारा रोल, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, किस पोजीशन पे हम अगर बैठे हुए हैं, तो वो भी हमारी जो वैल्यूज है, हमारा जो रोल है वो भी डिपेंड करता है हमारे क्रिएट करते हैं हमारी वैल्यूज पे, ओके। सो वी परफॉर्म इन आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ अकॉर्डिंग टू द रोल असाइंड टू अस, मींस ऐसा नहीं है कि जो हम सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, फिर उसको बहुत सारा गुस्सा आता है, ठीक है, एक गुस्सा आता है, वो एक रिजिड स्टिक हो सकता है कि फादर बनकर पर्सन बनकर रहता है, उसी तरह से वो क्या होता है, इनवर्स हो जाता है जब वो एक प्रोफेशनल लाइफ गेस्ट का काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको स्टिकनेस शो करनी है, आपके जो सबऑर्डिनेट है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो आपका स्टाफ है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्टिकनेस शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस प्लेस पे, उस पर्टिकुलर वर्किंग प्लेस पे आप क्या है, एक स्टिक बॉस है, ठीक है, जो गुस्सा करते हैं। और सेम अगर हम बात करें इन फैमिली में क्योंकि आपको काम नहीं कराना उनसे, जैसे आपको वर्क प्लेस पे आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो उस टाइम में आप क्या करते हैं, सबसे नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप क्या है, अलग है, तो आपका रोल क्या है आपके वर्क प्लेस पे, वो भी डिपेंड करते हैं आपके वैल्यूज पे, उस पे डिपेंड करते हैं। नाउ halo effects refers to the tendency of judging people on the basis of a single trait which may be good or bad। halo effect में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिंगल ट्रेट पे, किसी पर्टिकुलर सिंगल फैक्टर्स पे आप क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं किसी सेकंड पर्सन को, ठीक है, सपोज कीजिए किसी जगह पर एक पर्सन है, उसकी क्या होगी, आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी लड़ाई होगी उससे, ठीक है, अब आपके माइंड में क्या हो जाएगा, उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे कि नहीं ये तो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हो उस पर्टिकुलर उस सेकंड पर्सन को, ठीक है, दैट कंसिडर हेलो इफेक्ट, कि वो जो पर्सन है वो अच्छा पर्सन है, बुरा पर्सन है, वो फेवरेबल सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, ओके। तो आप क्या करते हैं, सिंगल ट्रेट पे आप उसको क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, okay, sometimes we judge a person by his or her first impression, for example, if a person is kind, he will also be perceived as good, able, helpful, cheerful, nice and intelligent and so on, ठीक है। now we are studying the subject human values and professional ethics, ठीक है, the values which we have to implement in our workplace। So एक मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी वैल्यूज होती हैं जो एक अभी हमने कहा कि जो वैल्यूज हमने करी, जो हम टाइप्स ऑफ वैल्यूज करी, जो हमने वो क्या करा, जर्नली करते हैं कि ये वैल्यूज होती हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल में सारी की सारी वैल्यूज भरी होती हैं, ठीक है, हो सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल में 10 वैल्यूज हो, ठीक है, उसमें से 5 हो, बट being a manager in a company, being a manager in the organization, कौन सी जो वैल्यूज है वो क्या है, नेसेसिटी, जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो वैल्यूज ऑफ इंडियन मैनेजर में फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली इंटीग्रिटी में ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर cornerstone of sustainable success। In order to follow their manager, people must have complete trust in his honesty, his dedication, his commitment, and his
unstakeable ethics and high standard and values. Okay. First one is आपको जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, उन पे उनको आप पर 100% ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो तभी वो आपका क्या करेंगे, कहना मानेंगे। अगर आप उनको कोई टास्क दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डेडलाइन आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, अगर उनका फेथ है आप में, ठीक है, और आपका ट्रस्ट है उनमें, ठीक है, कि हाँ जो मेरे एम्प्लॉयज है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऑब्वियसली वो आपके फेवर में काम करेंगे, ऑल द टाइम आपको काम करके देंगे। मैनेजर्स हु आर ओपन, ट्रूथफुल एंड consistent in their behavior are more likely to inspire trust, loyalty and commitment in their team, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि अगर 10 एम्प्लॉयज हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो 5 से आप किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, 5 जो अलग है उनसे आप किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, 2 से आप क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, 2 से आप क्या कर रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर सिंगल सिचुएशन में, ठीक है। तो उसमें क्या है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी एक मैनेजर में होनी चाहिए, एक गुड मैनेजर, ठीक है। उसके बाद विलिंगनेस टू टेक रिस्क, managers leaders are not afraid of taking risks or managing or making mistakes, okay, they learn and gain experience from their mistake and explore new opportunity, willingness to take risk। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आपको एक होता है ना, आप सारी की सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन होगी, हम ये एक्शन लेंगे, ये सिचुएशन होगी, ये एक्शन लेंगे, बट कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है जहां पर आपको ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, विलिंगनेस टू टेक एक्शन या रिस्क। कोई भी अगर मैनेजर की बात करें, कोई भी अगर हम जो टॉप मैनेजमेंट है, वो क्या होता है, अगर रिस्क टेकर होगा तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। Optimism and enthusiasm, a great manager inspires others with their enthusiasm, meanness, passion and their zeal for what they do, okay, rather than focusing on problems, they are solution oriented and focus on how to make things succeed, ठीक है। पॉजिटिव हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, हर वर्क प्लेस पे आते हैं, ठीक है। तो जो मैनेजर्स है वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, सारा दिन प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस किया है। दे आर विलिंग टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन के अंदर उनका जो फोकस होना चाहिए, किस चीज को होना चाहिए, सॉल्यूशन में होना चाहिए। हाँ ये XYZ प्रॉब्लम है, ये तो आ गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, उसको अपने सबऑर्डिनेट से, अपने स्टाफ से डिस्कस करना चाहिए कि कौन इस प्रॉब्लम का क्या पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद कमिटमेंट टू ग्रोथ, मैनेजर रिकॉग्नाइज देयर लर्निंग इज अ लाइफलॉन्ग प्रोसेस, दैट द लर्निंग इज अ लाइफलॉन्ग प्रोसेस एंड नेवर स्टॉप डूइंग व्हाट इट टेक्स टू ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली and maintain a grip with emerging trends and tools and business realities and technologies. Commitment to growth. जो मैनेजर है उनको ऐसा नहीं है कि अब उनको ये लगता है अच्छा जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो जो बेसिक चीजें थी वो मुझमें ऑलरेडी है, उसके बाद क्या करना है, उसमें लर्निंग जो है वो बंद कर दी, ठीक है। मैं बॉस हूँ, मुझे सारी चीजें आती हैं, ठीक है, उसने क्या करते लर्निंग बंद कर दी, तो क्या है लॉन्ग टर्म सक्सेस उसकी नहीं होगी, तो क्या होगा बीच में ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है। बीइंग अ मैनेजर इट इज रिस्पांसिबिलिटी कि जो लर्निंग है वो क्या है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, उसको सीखना है कि जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ऐसी कोई बुक नहीं है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कि अच्छा आपने वो बुक पढ़ी और वहां तक आपने जितनी आपने बुक पढ़ी थी उसके बाद आपने ऐड कर दिया, उसके बाद ठीक है ओके, अब उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए आपको हर पॉइंट पे, हर सिचुएशन पे लर्निंग के लिए अपना जो माइंड है वो ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको रिस्क नहीं होना है कि मुझे सब आता है, ओके। उसके बाद they focus on constant learning, exploration and innovation as well as SWOT analysis. SWOT analysis means strength, weakness, opportunity and threat analysis. Vision. Leaders know what they want and make clear, detailed and achievable plans to get the result. उनका
क्लियर विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज का टास्क हमने पूरा कर लिया, कल हमें पता ही नहीं कि क्या करना है। ठीक है, एक प्रॉपर जो टारगेट है, जो मिशन है, विजन है किसी भी लीडर का, किसी भी अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का, एक क्लियर मिशन एंड विजन होना चाहिए। इसको ये पता है कि हाँ, इस सिचुएशन में आफ्टर 6 मंथ मेरी पोजीशन यहाँ होगी, आफ्टर 5 years मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पर देखना चाहता हूँ। ओके, so they are not vague and ambitious in their goal. They have clear strategies to achieve their vision. बस strategies है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर विजन को अचीव करने के लिए, अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उसने जो स्ट्रेटजीज बनाई है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नाउ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इट्स while leaders may have lofty vision and ideas, they do not hide their heads in the clouds and are mindful to hard facts and figures that surrounded them. Okay? They are very realistic when it comes to assessing the landscape they operate in. Their practical about their decision they make. Okay? कोई मैनेजर है उसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जो काम वो कर रहा है किस तरह से कर रहा है, अगर उसे किसी को प्रमोशन दिए तो क्या क्या बेसिस से उसकी प्रमोशन की, ठीक है। स्ट्रेटजीज क्या है, सारे स्ट्रेटजीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारे सब लोगों को पता चले, सब तो अगर बात हम जब ग्रोथ की करें ना, तो कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो मैनेजर है तो वो अकेले तो ग्रो नहीं कर सकता ना, सारे के सारे जो उसके स्टाफ है, सबऑर्डिनेट्स है, जो उसके मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनको साथ लेके ग्रोथ करेगा। और जब अगर ट्रांसपेरेंसी है, जो स्ट्रेटजीज बन रही है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग जो लिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे। अगर किसी को लगता है कि हमसे चीजें छुपाई जा रही है तो क्या वो नेगेटिव फीलिंग आती है उसमें, उस टाइम सिचुएशन में वो काम करना बंद कर देता है। तो अगर पता है हर एम्प्लॉयज को, हर सबऑर्डिनेट को, स्टाफ को कि जो हमारे मैनेजर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, सारी की सारी चीजें क्लियर डिस्कस करता है, तो क्या है, ऑब्वियसली मोटिवेट होंगे और ग्रो होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ नेक्स्ट इज रिस्पांसिबिलिटी। लीडर कैन बी डिपेंडेंट और टेक रिस्पांसिबिलिटीज फॉर देयर एक्शन एंड टू लीव अप देयर रिस्पांसिबिलिटीज कंप्लीटली। जो भी लीडर है वो अपने एक्शन के लिए जो उन्होंने एक्ट किया है उसके लिए जो रिस्पांसिबिलिटी अगर किसी दूसरे पर नहीं डालते, वो खुद रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं उसकी। अच्छा हाँ, कुछ अगर अच्छा हुआ है, इन दैट सिचुएशन आई एम रिस्पांसिबल, और कुछ नेगेटिव हुआ है, कुछ गलत हो गया, इन दैट सिचुएशन आल्सो द मैनेजर टेक द रिस्पांसिबिलिटी। ओके, they stand behind the commitments they make and do not let their teams down more. They assign or allocate blame to deflect their all responsibility. ठीक है, वो क्या करता है, अपनी जो कमिटमेंट है, जिसने कमिटमेंट की है, और अगर कुछ कमिटमेंट अचीव नहीं हुई है तो क्या करता है, अपनी टीम पे ब्लेम नहीं देता, उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी खुद लेता है कि हाँ नहीं, मेरी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद they do not have a victim mentality. They hold others responsible for their poor choices and deficiencies, but steer the challenges in the face and confront them head on. उसके बाद हार्ड वर्क, ऑब्वियसली मैनेजर जो है उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मैनेजर वर्क हार्ड एंड एक्सेप्ट नो शॉर्टकट। लाइफ में ग्रोथ का, अचीवमेंट का, सक्सेस हो सकता है, सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई मैनेजर ये सोच रहा है अच्छा ये छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है, ये 2-4 काम करके मैं मेरी कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी successful in life and achieve your goals. Okay, they have a strong sense of duty and very high standard of excellence, and they apply these rigorous standards to themselves. Okay, they always seek better, smarter, more effective ways of doing things. हमेशा वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, वो हमेशा सर्च करता है चीजों को किस तरह से मैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली चीजों को कर पाऊं।
उसमें next one is self confidence. Leaders generally have little need for approval and are motivated by an inner strength. Majority trust. Leaders are very cognizant on their inner strength, weakness, and the impact they have on the other, and knowledgeable of what they can and cannot realistic to achieve influence. Leaders, managers should be confident so that their team can also be self-confident. अगर देखिए जो मैनेजर है, जो लीडर है, जो लीड कर रहा है किसी ग्रुप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, if he or she is not confident, then how he or she expect from their colleagues, from their employees कि वो confident हो? ओके, तो एक जो बोल सकते हैं वैल्यूज में कॉन्फिडेंस, एक वैल्यूज जो है कॉन्फिडेंस, वो एक मैनेजर में ऑब्वियसली होना चाहिए. इसका इमोशनल इंटेलिजेंस में means empathy, self-awareness, discipline, self-discipline, social competence, or are all key to successful manager and all the associated with high level of emotional intelligence. The ability to focus on positive attitude and refrain from negative and self-defending attitudes behavior are the element of emotional intelligence that contribute to a successful manager. Okay? Intelligence, emotional intelligence में क्या हो जाएगा? आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए. इमोशनल इंटेलिजेंस मींस कोई सिचुएशन ऐसी होगी उस टाइम आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको आपके अंदर से क्या होना चाहिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सिचुएशन आती है क्योंकि आप रिस्क टेकर, आपको पहले से ही पता था कि हाँ डाउनफॉल आ सकता है, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हैं. ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको कितना स्ट्रॉन्ग रहना है, इमोशनल इंटेलिजेंस. उसके बाद एक्सपर्टीज इन इंडस्ट्री, they are very sound in collecting, managing all their information, knowledge and competence they need to maintain an edge over their competitor. Okay, जो obviously जो लीडर्स हैं उनको अपने फील्ड में क्या होना है, एक्सपर्ट होना है. ठीक है, उनको पता होना चाहिए मेरे कॉम्पिटिटर किस सिचुएशन में है, किस पोजीशन में है, किस लेवल पे है, किस स्ट्रेटजीज वो बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए. ठीक, तो उसी के अगर आपको क्या करना है, अगर आपको रेस में रहना है, ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतना मुझे हो रहा है, मुझे आपका जो मिशन है, जो विजन है, वो क्या टॉप पहुंचने का नहीं है. ठीक है, जितना हो रहा है अगर आप सेटिस्फाइड, दैट्स अनदर थिंग. ठीक है, बट अगर आप ग्रोथ चाह रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको क्या होना पड़ेगा, एक्सपर्टीज होना पड़ेगा अपने फील्ड का. उसके बाद now the last one is ability to engage other. A key leader traits are inspiring, motivating, engaging and bringing out the best in others. The best leader encourage leadership in all around them and strive to develop and empower others to assume role of leadership and responsibility. Okay. They are able to propel others to evaluate level and performance with their all energy and enthusiasm and insight can maximize the strength and capabilities of their team, the benefit of the whole organization. Okay. Ability to engage others. जो भी मैनेजर है उसकी एक बेसिक क्वालिटी है एंगेज करने की. ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई टास्क प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर आपको ये टास्क करना है, ठीक है, इंडिविजुअल को आप टीम को आपने कोई टास्क प्रोवाइड किया कि आपको विद इन 10 डेज ये टास्क क्या है कंप्लीट करना है, बट यू आर नॉट एंगेजिंग. ठीक है, आपने क्या किया, टास्क देकर आप उसको क्या कर चले गए, उसके बाद 10 दिन बाद अगर आप उनसे पूछे हाँ बिफोर 10 days आई हैव गिवन यू अ टास्क, उसका स्टेटस क्या है 10 days बाद, उसमें क्या किया आपने, एंगेज नहीं किया अपने एम्प्लॉइज को. तो एक मैनेजर को क्या है, एंगेजिंग होना चाहिए, उसको साइड बाय साइड अगर कोई बीच में उनसे प्रोफेशन करना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सारे के सारे जो काम है वो टाइम में अचीव हो रहे हैं, डिस्कशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. सॉरी, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या होना चाहिए, उनका जो स्टाफ है, जो सबऑर्डिनेट्स है, उनका क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में.
जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको अगर हम डिसीजन मेकिंग में बीइंग अ मैनेजर अगर उनको डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प ली जा रही है, तो वो भी ऑब्वियसली काफी मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमारा जो मैनेजर है, हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है, हमारा जो बॉस है, वो हमें से क्या कंसर्न कर रहा है, हमसे डिस्कशन कर रहा है व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो ऑब्वियसली वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। So this is a case study and we will discuss this case study in our next video. So this is all about today. So thank you very much. If you have any query regarding over this video, this lecture, so you can mail me on redu.management@tmu.ac.in, and this is my contact number.